So, good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind to all of you. Uh, Today, we have coming on the platform here, although it's really unfortunate what happened yesterday in Pahalgam. Uh, Close to 30 innocent terrorists were gunned down mercilessly by these terrorists, and that too by identifying their religious identity. And they had too much time also to conduct their operation and also flee into thin air. So, to discuss on this matter, I have an esteemed panel with me today. I have Colonel R.K. Sharma, who is a distinguished Kargil veteran and also has a lot of accolades to his credit. He's a Kirti Chakra, Shaurya Chakra, and Sena Medal gallantry. Our second guest is Colonel Rajiv Baga, sir, who is also a decorated army veteran who is from the NSG. And we will try to hear from these senior statesmen of the military what are the causes, how despite such a strong security establishment in the valley, why are we not able to cut down on these attacks, and how Pakistan अपने इन नापाक इरादों में किस तरह से it has been able to get successful. So we'll start with Colonel Sharma. Colonel Sharma, what do you think कि इस तरह के जो since you come from Jammu also, so and you understand the topography here, what do you think कि क्या कारण है कि इस तरह के क्या अभद्रता और बारबेरिक अटैक्स होते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते? नवजोत, आज बहुत ही दुखद दिन है और पूरा देश जो है वो आक्रोश में है और इस तरह की बर्बरता लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18-20 साल के बाद वापस हुई है। उससे पहले ही भद्रवा किश्तवाड़ में होता था कि बारात की बस जा रही है तो उसको खाली करवा के आइडेंटिटी पूछ के और सबको उड़ा देना। और मेरी संवेदनशीलता है सबके साथ जिन्होंने अपनों को खोया यहाँ पे, और साथ ही जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग जख्मी हैं, मैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करता हूँ। ये तो है कि ये एरिया जो है पहलगाम जहाँ पर ये अटैक हुआ है वहाँ पर जितने इंतज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस के होने चाहिए थे उतने नहीं थे। ये कमी कहीं ना कहीं पे चूक हुई है। आधे घंटे तक वहाँ पर उन्होंने तांडव किया है, आइडेंटिफाई किया। इतना टाइम मिलिटेंट के पास नहीं होता, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई करके, और आइडेंटिफाई करने का तरीका भी उनका गलत था, और उसके बाद उनको शूट किया है। उसके बाद लेडीज को जाके कोई ये दर्द सुना सके इसलिए लेडीज को टच नहीं किया। जाके कोई दर्द सुनाने वाला भी होना चाहिए या मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए, इसलिए उनको टच नहीं किया है। तो बहुत ही दुखद दिन है। मैं ये कहना चाहूँगा। Colonel Rajiv, what are your initial thoughts about what happened? Well, Mr. Navjot, in my perception, firstly, certainly, whatever these whenever these misadventure activities occur, they definitely got evil intentions and they look forward for softer targets. And that are very, this time, unfortunate that innocent civilians have got into this loop this time. And the saddest agony is that, like they, as Colonel Sharma sir has said it, that they ask the religion and this and that. Come on, this is something. Now, just say, today I was thinking, if they call this thing jihad, I call it jahalat. What they are trying to prove, right, in fact, by killing innocent people, and if they call themselves combatants or something so-called kind of a soldier, or I won't never consider them as such, because we are much most primo. Indian Army is the greatest. The only thing is they don't dare to put their two eyes in our eyes, and they start doing it. I call it this Mumbai episode, Kandahar episode. One common line comes out of that, that they are using somebody as a tool. Wow. What a very shame on these jokers.
those who are sitting across and handling them, they need a guts to really challenge our forces. But okay, that is past I'm talking about. What is required to be addressed in present scenario, a befitting, definitely answer without So we'll delay. come to the solution. Yeah. We'll come to the solutions as well. But sir, firstly, Okay. we'll come to the solutions as well. Okay. बट सर शुरुआत में अगर हम इसको बात करें, जैसे हमने अभी पाकिस्तान के बलोचिस्तान रीजन में देखा, इस तरह से वहां पे बहुत ही एक उपद्रव का माहौल था, वो ट्रेन हाईजैक हुआ, उनके कुछ अपनी भी जो सिचुएशन है वो मिलिट्री की भी चरमराई हुई है। सो क्या Yes. आप इसको कनेक्ट करके देखते हैं पाकिस्तान की अपनी जो मिलिट्री सिचुएशन है या उनकी जो इकोनॉमिक शैम्बल्स में है, वो क्या आपको उससे जोड़ के देखते हैं कि बौखलाहट है ये, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पाकिस्तान डूइंग सच एक्टिविटीज? तो देखो, is it fine? It is their total internal stuff, whatever has happened there also, very unfortunate. But definitely, in my again perception, Pakistan is trying to play a different card to distract the attention of their locals, or rather trying to say, look, there's something wrong there also in their country. And they're trying to engage Indian army, or like we have definitely the day we decide to go inside for POK, that's the end of era of them. But they are already scared at this time. They really don't want Indian army to really come as a hawk and ready get them. And this is what exactly, if you remember, the chief of Pakistan Army had given a statement. This was a kind of their cruel intention. He was so restless to do something misadventure in our country. I think that is where there was something moving in their mind. कर्नल शर्मा, अगर आप इस चीज को एनालाइज करें कि पाकिस्तान, जैसे कर्नल राजीव आल्सो मेंशन्ड अबाउट आसिम मुनीर की वो जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज एंड देयर इज अ टू नेशन थ्योरी का जो कारण है उसके लिए हम अलग हैं, वो क्या उनकी अपनी बौखलाहट थी? क्योंकि आम जो अवाम है पाकिस्तान की, कहीं ना कहीं वो तो पीस ही चाहेगी, पर उनको भी गैलरीज को प्ले तो करना है कि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज ऑस्ट्रेलिया में है, इनके कनेक्शंस यूएस के जनरल्स के साथ है, अपने बच्चे इनके वहां पढ़ रहे हैं, पर ये पाकिस्तान की आम आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं। सर, आपकी क्या असेसमेंट है इस चीज को लेके? एब्सोल्युटली नवजोत, आई एम विद यू विद योर स्टेटमेंट। एक चीज मैं और यहाँ पर बताना चाहूंगा, पहले वो ये है कि थैंक गॉड यहाँ पर इस डिस्कशन में आपने पाकिस्तान का नाम लिया, नहीं तो सदियों से, जब से ये 35-40 साल से लश्कर तोबा करे जा रहे हैं हम, और कल से सारे इंडियन ये बोल रहे हैं कि लश्कर तोबा ने अटैक किया। हम पाकिस्तान की जिम्मेवारी आधी कर देते हैं लश्कर तोबा का नाम लेके। इट इज डन बाय ब्लडी पाकिस्तान, नॉट लश्कर तोबा। लश्कर तोबा एक छोटी सी तंजीम है, नाम अदली बदली होते रहते हैं। लश्कर तोबा कहाँ तक ट्रेड होती है? पाकिस्तान में। कैंप कहाँ है? पाकिस्तान में। इन्फिल्ट्रेट कौन करवाता है? पाकिस्तान आर्मी, ISI। तो इट इज डायरेक्टली पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। बीच में किसी और के लिंक जोड़ के हम उसकी जिम्मेवारी आधी ना करते, ये है। और दूसरा, डेफिनेटली आक्रोश तो उनको पहले से था। वो क्या आक्रोश था? जो कुछ उनके साथ बीता, उनकी ट्रेन में जो हादसा हुआ, जो कुछ भी बलूचिस्तान में जितने फौज वाले मारे गए, उसके बाद सिमिलर एक्ट इस तरफ करवा के तो लोगों को डाइवर्ट करना, उनकी रोजी रोटी हमारे साथ अपने आप को कनेक्ट करके, खास करके दिस सॉइल ऑफ इंडिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसको अपने साथ कनेक्ट रख के तो उनकी रोजी रोटी चलती है। और जहां जहां पे भी उनको मौका मिलेगा वो इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। छोटी मोटी कार्रवाइयां हमने पहले करके देख ली, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, वो जो भी है एयर स्ट्राइक हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसने वापस ये कारनामा कर दिया 2-4 साल के बाद। जहां पर भी वो लूज लिंक देखता है, जहां पर भी वो मौका देखता है, रैकी करता है। 6 महीने तक उसी के चॉइस का फिर टाइम होता है, उसी की चॉइस की जगह होती है, और वो इस तरह की बर्बरता करके चला जाता है। इट इज जस्ट कि उसको एक टाइम की रोटी अगर मिल रही है, एक टाइम की भी पूरी, तो वो कश्मीर के नाम से मिल रही है, वो इसको कभी मरने नहीं देना। सर, साथ में अगर हम देखें कि अभी जो टाइमिंग है इस अटैक की,
अभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए हुए हैं इंडिया में, और हमारे जो प्रधानमंत्री गए हुए थे कल, ही वाज इन सऊदी अरेबिया विजिट। तो क्या ये टाइमिंग भी बड़ी महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है, जब बिल क्लिंटन आए थे तब क्षिति सिंह पुरा का, अगर आपको याद होगा, क्षिति सिंह पुरा का इंसिडेंट हुआ था, बिल क्लिंटन आए हुए थे। तो ये इनकी कोशिश होती है कि जब हम नॉर्मेलसी थोड़ी लगने लगती है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ा है, रेगुलरली बढ़ा है, तो क्या ये इंटरनेशनल मीडिया में भी एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो 370 आपने हटाया है वो गलत है, या एक तरह का प्रोपेगेंडा भी अपना इसके थ्रू करना चाहते हैं, ताकि हमने एक पर्टिकुलरली आपके हिंदूज को अटैक किया छाट छाट के, और दूसरा हमने विश्व को दिखा दिया कि इस वक्त यहाँ पे एक सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, कि यू हैव फेल्ड, इंडिया हैज फेल्ड इन कंट्रोलिंग कश्मीर सिक्योरिटी सिनेरियो। सो व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ दिस? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बोला है बिल्कुल वो सही बोला है। इट इज नॉट ओनली कि सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ पर है, इसके अलावा जो इस पीरियड में जो जो कुछ होने वाला था या जो जो हुआ है, चिनाब ब्रिज का जो है वो होना था उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके बाद श्रीनगर ट्रेन वंदे भारत पहुंचने वाली थी, और ये सारी डेवलपमेंट जो है, ये सारी, या भी अमरनाथ यात्रा की सारी प्लानिंग वगैरह चल रही थी, सारी तो हाँ, सब कुछ जो है ना वो पाकिस्तान की आंख में कुकरा है। वो कश्मीर को ग्रो होते हुए नहीं देख सकता, वो हिंदुस्तान को ग्रो होते हुए नहीं देख सकता। ये सबसे बड़ी उसकी जो है ना डेस्परेशन है, उसकी वजह से बेसिकली व्हाट कर्नल शर्मा, आई जस्ट ऐड ऑन टू दिस, इन्होंने बताया कि जैसे कि द प्रोग्रेसिव चार्ट इज देयर इन द कश्मीर वैली and the entire world is watching, and we are definitely, as a country is a very going to be a supreme power sometime, superpower. So Kashmir में when we have generated that type of resources in the terms of train has started moving and some more, that article I'm talking about, and then some normalcy has started coming back, what Mr. Najot you are mentioning, that wo khatakra hai, it is very much they are trying to deliberately taking a step कि look, no, चाहे ट्रेन आ गई है चाहे वो आ गया है, no, the things are not, it is a wrong claims, but let me tell you, Pakis, if they are thinking with their these small, though it, that of course I understand what has happened on the border area, that is total between two armies. But what has happened in the Pahalgam, this will not be tolerated. चाहे वो deliberately कर रहा है, किसी की visit के दौरान कर रहा है, whatever the intentions, their cruel intentions have been exposed to the entire international forum. So this is the height of barbarism, I would say. You fight one-on-one with your armies, there you won't be able to win. Now you target the innocent civilians. Now Exactly. coming to the scene of the attack, the place where it happened, the Barsan Valley in Pahalgam, it is disconnected from the motorable road also. It is around 30 kilometer, 30, half an hour, 30 minutes. You have to trek or you take the khachar to reach there. Also, it is surrounded by dense forests. So that was strategically chosen because अगर फौज को भी आना होगा वहां पे, it will take some time. Also, the military precision with the operation was done. So don't you think it was the handiwork of the Pak army itself, and it is not the task of the the TRF और जो ये नाम ले रहे हैं, क्या इसमें actual there's involvement of Pak army? Karu Sharma. Okay. Any Colonel Rajiv, please. Yeah, please. Okay. Colonel Rajiv. What I personally feel, if you say that there is some involvement of a Paki regular army in this particular part, am I correct? This is what the question, right? Yes. Is it the regulars are involved? Absolutely, this cannot be ruled out. This definitely cannot be ruled out. These monkeys, if they are jumping around in that pocket, definitely they are certainly groomed and trained and monitored by some professional army. वो उससे तो हाथ हो नहीं सकते वो। अब आपका जो पॉइंट था कि they have done this in this misadventure in some remote area. एक चीज देखो, I am a soldier and
Colonel Sharma sir has also seen his life royal in our army. The administration out there bit, and sometimes we really need to take a certain amount of precautions. If the tourism has started coming, that pockets, I'm not saying if are not dominated, but you cannot really dominate every inch and every corner of that. Hmm. But the point is, again, when the things are graduating from the worst to the normalcy, or it has come, the certain amount of indicators, certain amount of SOP about the security, and that should be told to the people who are visiting in that area. That is one part. Second part is the security people, in case any people, whosoever are going in that pocket, in that area should be sanitized in initially, then the tourist or whosoever is coming should be allowed to come move inside. So But what थोड़ा is सा time लगा. is there the lapses on the part of the security grid? Because why was that area not patrolled properly? Because as you pertinently mentioned कि टूरिस्ट अब इनफ्लो बढ़ रहा है, तो आपने जेके पुलिस क्यों नहीं है, सीआरपीएफ की टुकड़ी वहां पे क्यों नहीं है, या आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट उस एरिया के अराउंड? बिकॉज व्हेन वंस यू नो द एरिया, द टेरेन, it is a little remote, so you should identify it is a security hotspot as well. No, I won't say that there is some kind of any security lapse, but definitely there is a requirement to re-revise it. There may be certain or more pockets like this. It is unfortunate part that some unfortunate incident has occurred at that particular time in particular area. ऐसा नहीं है कि वो उस एरिया के अंदर डोमिनेशन नहीं होगा, but definitely it is not that कि you rub something, the gin will come or something will be produced. But the the only buck thing has to is, stop. The buck has to stop Yes. somewhere. Responsibility Ye- needs to be pointed out. yes, I would like the yes. same perspective to listen from Colonel Sharma also. Sir, आप क्या मुझे सोचते हैं कि सर- कहीं ना कहीं, sir, please continue. Okay, sir, I am sorry, I am little wary with this point. आधा एक घंटे तक वहां पर मिलिटेंट्स ने ना तांडव किया है. पूछ के मिलिटेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आइडेंटिफिकेशन करके किसी को मारे, और वहां पर आधे घंटे तक एक सिंगल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बुलेट नहीं चला है. कोई था ही नहीं, ना जेकेपी थी, ना सीआरपीएफ थी, ना बीएसएफ थी. और आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हो, और वो पीक मतलब कि वो है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर टूरिस्ट, और वहां पर आपने बिल्कुल ऐसे छोड़ा हुआ था. और जब मतलब है कि सब कुछ ये हो गया, दे वैनिश्ड, उसके बाद जाके जो भी आए हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, वो आए. आधे जो है उनको तो मतलब कि वहां पे इवैक्यूएट नहीं कर सके कि कहीं पे सही जगह पे, नहीं तो 2-4 शायद इनमें से बच भी सकते थे. But ही नहीं करने को. और ये लोकल्स की वजह से जितने भी वुंडेड थे वो लोकल्स ने उठा के लेके आए हैं उनको. तो डेफिनेटली समवेयर लैब्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस या इंट फेलियर पता होना चाहिए. आर्टिकल 370 हमने हटाया है. उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. Despite that, despite the strong military presence, how is Pakistan able to stump us, surprise us every time with such? Because we have to preempt. We know that now a lot of things are churning around. When we have, as you mentioned earlier, कि हमारा नेबर जब कहते हैं ना चेंज नहीं कर सकते, कोई बदमाश नेबर हो, तो हमें अपना फेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. तो क्या हमने अपनी फेंस को मजबूत करने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है सर? देखो, there is as per the armies all the time one of the most important tool, and it has to be kept very much sharpened all the time. But at the same time, when the खुशहाली और वहां पे जब अच्छा माहौल पैदा हो रहा है, we also need to really gradually थोड़ा सा hand over the things to the state government कि भाई अभी whenever, and we are required to be present there as a shadow. But
अब आपका when we say to remain as a shadow means we are watching the moves of other side, but there is a certainly at the same time requirement of having synergetic platform again need to be revised between state government and the security forces whoever are operating there, Right. so that that commonality must come out कि that ये मेरे एरिया में ये इवेंट्स होंगे, दिस इज द मोस्ट टूरिस्ट बिगेस्ट टूरिस्ट हब, आपको और हमें मिलके इसको सुरक्षित रखना. तो आई Right. बिलीव दिस समथिंग रिक्वायर्ड टू बी some type of audit is required to be carried out. Colonel Sharma, I'd like to hear from you now. What should be our response, particularly immediate response क्या होना चाहिए? Because लोगों के अंदर आप देखिए बहुत ज्यादा आक्रोश है देश भर में. They are, वो जो पिक्चर हमने सोशल मीडिया पे देखी, that lady sitting with her dead husband, and उनसे उनका धर्म पूछा गया और फिर पूछा गया कि आपको नहीं मारेंगे, जाइए मोदी को बता दीजिए. तो इस तरह का ये तो देश के ऊपर एक तरह की जंग छेड़ी जा रही है कि हमारे आत्मसम्मान पे एक ठेस लगाई जा रही है. आप क्या सोचते हैं इसका, कैसे हम इस चीज का जवाब और एकदम करारा जवाब कैसे दें? देखो, इमीडिएट रिएक्शन जो है उसके लिए तो मेरे ख्याल में फोर्सेस ऑलरेडी है मूव्ड आउट फ्रॉम देयर बैरक्स एंड दे आर लुकिंग फॉर देम, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन एम इज नॉट कि 2-4 मिलिटेंट मार दिया तो हमने करारा सबक सिखा दिया या हमने बदला ले लिया, वो नहीं है. हमारे को इसकी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, नंबर 1. और नंबर 2, कश्मीर वैली के अंदर जब तक कंक्रीट सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वी कैन नॉट पुट गार्ड डाउन कि वो जगह सेफ है, वो जगह सेफ है, इधर इंसिडेंट नहीं हुआ, 2-4-6 महीने नहीं हुआ तो वो एरिया जो है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करना या हटा देना या जो भी है. दिस गेम वी कैन नॉट प्ले राइट नाउ इन दी. और उससे बड़ा जो है कि अभी पाकिस्तान अगर कर भी रहा है, भूखा नंगा मरने की कगार पे है, अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो उसको फर्दर डिवाइड इन टू पीसेस ना, उसका बलोचिस्तान करवाने के लिए ऑल आउट जाओ. कतर में लड़ाई फौजें लाहौर पहुंच गई थी, एक बार फिर पहुंचो, अपने पास रखो, ट्रिम करो साले को, अपने आप खत्म हो जाएगा. अब छोटे छोटे जो है ना कि एक दिन हम रात को गए और उसको आके सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और फिर जब बम फोड़ के आ गए तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला. वो वापस अगले दिन वापस वो वही कार्रवाई करेगा. ही विल अगेन लुक फॉर अपॉर्चुनिटी. वो अपने आप को आपसे डिसंगेज नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में है. तो उसको अपने से अलग करना है तो उसको यू हैव टू ट्रिम इनटू पीसेस. जो कुछ भी हो सकता है, कराची में करवा सकते हो, कराची में करवाओ, जहां भी सिंधी सुंधी बैठे हुए हैं. इधर जो हो सकता है बलोचिस्तान में वो करवाओ, गो ऑल आउट, बोल के करो, साला क्या दिक्कत है. शुड वी गो आउट ऑन टेकिंग हाई वैल्यू टारगेट्स? जैसे अब हमने वो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और हमने डी एस्केलेट कर दिया. शुड वी गो अप द एस्केलेशन लेडर? क्या हमें एस्केलेशन को बढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान को वो सबक मिले कि देखो, पिछले 35 साल में जितने लोग इस इंसर्जेंसी में मरे, इतने किसी वर्ल्ड वार में, वर्ल्ड 2 में या किसी भी और वार में नहीं मरे. ठीक है, तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट? और ये पीओके किसी के बाप का नहीं है, वो इंडिया की टेरिटोरी है. खामखा हमने उनको लीज पे दे रखी है, क्या मतलब हुआ? वी कैन टेक इट. इंडियन आर्मी इज कैपेबल ऑफ, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस आर कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट बैक. तो क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर 71 का पढ़ो तो कहां तक हमारी फौजें जाके पहुंच की और वापस आई हैं. तो अभी क्यों नहीं होता है? एवरीथिंग कैन बी डन, बट विल हम सीजफायर एंड में सीजफायर कर देते हैं. हम जब उनकी टेरिटरी में घुस के हम सीजफायर करते हैं, जीसी 57 स्टार में बैठ के तो वापस साइन भी कर देते हैं. तो दैट इज नॉट डन. Colonel Kanwaraji, yes, please, Sanojit. I want to extend this question a little bit further into the larger geopolitics of South Asia. जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो चर्निंग हो रही है, वहां पे लालमोनिर हाट में चाइना का एयरबेस is coming up or talks are going around that. Also, Mr. Yunus, he's leaning towards he comes from the Bill Clinton Foundation and his American connections. Also, you know that Saint Martin Island की बात होती है कि वहां पे यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है. तो भारत को ये चाइना एंड दिस यूएस, although US claims to be a friend, but ये encircle करने की कोशिश कर रहे हैं through various areas.
Now you cannot rule out the Chinese involvement also in what has happened yesterday, because there's a larger geopolitical game happening. What do you see that कि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, वो हमें एकदम से it's coming too much anti us. तो आप क्या सोचते हैं इसमें? What do you think? देखो, firstly, I am absolutely in agreement as far that they are trying to encircle us. But at the same time, my compliments to our great foreign policy now and our diplomatic relations which we are trying to establish with our surrounding countries. A recent visit of our great Prime Minister to Sri Lanka. Right? Now, I come back to your question, that is the Bangladesh, who never had that much capacity and courage. We at the same time definitely trying to bring a brilliant relationship between US and us. That is we are also having a kind of a joint naval exercises in that zone. Right. To keep them under that you are not operating in isolation. We are also watching you. I remember, I think a year or 2 years back, China dared to send his 2 vessels in Sri Lanka. We're sitting in it is just a trial, and whereas absolutely, and with the 2 radars, which were the range of around 500 or 1,000 kilometers, that means coming inside and covering our satellite launching bases and all that, पूरा radar में रखा. तो उसको हमने काफी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली उसको डील करके उनको पीछे भेजा गया. And what you said that Chinese involvement in these type of episodes, funding them, disturbing here, is cannot be ruled out. And what is the requirement today is to have a definitely, of course, उसमें कोई शक ही नहीं है that our country is having our leaders are becoming global leaders now, और उनको उस बात से बहुत चिंता हो रखी है that India is in a capacity to move their requirements as per their own mindset. And our mindset is very correct. The sovereignty of our country, having a good relation with others, and anyone trying to come closer, पहली तो उनको डिप्लोमेटिकली समझाना, और नहीं है तो फिर ग्लोबली आइसोलेट करना. तीसरा है फिर वो आपको मालूम है Indian Army, Indian Armed Forces are capable of handling such eventualities. Right. Colonel Sharma, I'll continue this question also and I'll ask, जैसे सर ने बात की कि what are the responses? अब हमारे पास सर diplomatic ties तो पाकिस्तान के साथ almost dead है. We don't have proper diplomatic channel talks going on. Also, the amount of trade that we have is minimal or negligible है. तो हम उस एंगल पे तो चाइना पाकिस्तान को रोक नहीं सकते या सैंक्शंस लगा दे. FATF सैंक्शंस भी लगा के हम देख चुके हैं. तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज मोस्टली अ मिलिट्री ऑप्शन, और टीचिंग पाकिस्तान इन द लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड, उसको उस भाषा में समझाना जिसमें वो समझता है. तो आप क्या समझते हैं वो भाषा, अब भाषा की कितनी कड़ी भाषा होनी चाहिए? वो इजराइल स्टाइल, और ये रशिया के साथ भी तो लड़ रहा है. छोटी सी कंट्री है. सो कितने 2 साल हो गए लगातार. यस, यूक्रेन एंड रशिया. यूक्रेन जो है तो क्या साइज है उस बेचारे का, बट उसने टक्कर दे रखी है. तो यहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, कुछ भी नहीं. रोक कौन रहा है हमारे को इजराइल बनने से? हम ये देखते रहेंगे, कड़ी निंदा करते रहेंगे, दिए जलाते रहेंगे, कैंडल मार्च करते रहेंगे. दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. बहुत हो गया, 35 साल हो गए करते हुए. ठीक है, 35 साल की अगर पंजाब में ला लें तो 45 साल हो गए, 50 साल. नॉट रिक्वायर्ड. क्या सर हम मिलिट्री ऑप्शंस इनका है दैट फर्स्टली इनका अभी इमीडिएटली एक बी फिटिंग आंसर तो देना चाहिए इनको. सर वो आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज अब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया सर, हमने एयर स्ट्राइक करके देख लिया, बट पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं. किसी ना किसी तरह से हम
अभी सर हम कितने और जाने, कितने गवाएंगे, कितने सिक्योरिटी पर्सन को लूज करेंगे, कितने सिविलियंस को लूज करेंगे, कि जब हम जागेंगे कि नाउ enough is enough. Now we are going to teach you the lesson that you deserve to be taught. I think the time is ripe now. So what is that stern action that we need to take right now? कि बहुत हो चुका हमारे innocent lives. We don't want to lose any more of our innocent lives. You just come and you kill and you flee. You can't just take us for a ride. You will be made to pay the price for this. What is the way forward, sir? पाकिस्तान की सरकार की जड़ें हिलानी पड़ेंगी सर। बाकी बंदे बुंदे मारने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान पे हमला करके आपने उनके चाहे 2000 मार दें हम, हमारा एक भी जो है वो ज्यादा कीमती है उनसे सालों से, ठीक है। बिल्कुल सर। तो उसकी तो कोई वो नहीं है। आपको गवर्नमेंट की जड़ें हिलानी पड़ेंगी और गवर्नमेंट की जड़ें हिलती हैं पावर से। पावर जो बंदूक की नली से निकलती है, तो मिलिट्री ऑप्शन के आर पार। हमने 2-3 मौके ऐसे ही छोड़ दिए पराक्रम वगैरह में, उस टाइम पे वी शुड हैव गॉन ऑल आउट। राइट। पिछले 20 साल और भुगता हमने, 2003 से लेकर भुगत रहे लास्ट 20 इयर्स, नहीं तो उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाना था। I think what exactly in addition we should go with the multiple options. One is the punishing the target. और आज की डेट में इनकी इकोनॉमी इतनी शटर हो चुकी है, अगर इनका ग्लोबली इनको पहले फर्स्टली आइसोलेट कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। They should be kept like a bloody mouse in a cage and we should not feed them. It should be the policy we should adopt. Not only we, now we have got a lot of say in the entire global. तो we should क्या कहते हैं, पहले तो cut their supplies and जिसके बलबूते पे like China is entering, वहां ऊपर से लेके Fort Gwada नीचे तक, if we isolate in some form their POK, Baluch and all that with a military option, I'm telling you, 2 days Pakistan will come on their haunches. This is a combination of this punishing the target, and that is through global and going for a minor ops. I think this is what. So Pakistan goes with a begging bowl to the Americans and the Chinese. Whenever it's short of funds, it goes to these countries. It's उनके जो करता धरता है, जो उनके आका है अमेरिका में या चाइना में, उनसे भीख तो मांगते हैं सर। वो उन्हीं डोल्स का इस्तेमाल करते हैं to fund these terror factories that it keeps running. People in Pakistan are rotting, and the generals or the high gentry, the aristocracy, they are having a gala time of their lives. But we need to hit them hard where it hurts them the most. Maybe we'll need to take down these generals. Is it time for that, sir, now? Colonel Sharma, what do you think? Is it time to take down Asim Munir? Bilkul, absolutely, sir. Is he the real perpetrator behind these attacks? Because his speech was incendiary. उन्होंने जो स्पीच की है वो बहुत ही ज्यादा भड़काऊ भाषण किया था, और उसके 5 दिन के बाद ये इंडिया में इंसिडेंट हो जाता है। वो किसी जनरल की या किसी चीफ की स्पीच नहीं थी, वो एक मुजाहिद की स्पीच थी। Absolutely, I couldn't agree more with you, sir. And this is what exactly, that's what I say. उनको दोहरी मार चाहिए actually. Their economy should not rise. That should be another step we should add on, and definitely military option should be our top priority in such a manner, because their all ill intention should be exposed. यही एक रास्ता इनके लिए अभी बचा है, लगाम डालने का। तो क्या हमें सर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए? बिकॉज पिछले 2-3 साल में कुछ सिक्योरिटी ग्रिड कुछ हद तक कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, हमने डाइल्यूट किया है टुवर्ड्स चाइना एज वेल। आप क्या कर्नल शर्मा, आप पिछले इंटरव्यू में भी आपसे बात कर रहे थे, यू टॉक्ड अबाउट रीएडजस्टमेंट ऑफ द प्लेटून्स एंड द सिक्योरिटी एस्टैब्लिश। व्हाट डू यू थिंक? क्या ये हमारी कमजोर नहीं हुए? हमने एक कोशिश करके देखी है कि माहौल ठीक हो रहा है, सब कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, तो कम करके देखते हैं। But if requirement is there, so why not? We can like redeploy them. We should redeploy them. और अगर हम देखिए, हाँ,
और अगर हम Sorry, please go टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कश्मीर के लिए, ये वंदे भारत अगर वहां पर जाएगी तो ये खाली तो नहीं जाएगी, टूरिस्ट जाएगा, तो हमारे को टूरिज्म को सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी. दिस इज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो वी हैव टू रीडिप्लॉय दैट. पहले मैं आपको बताता हूं, पहले जिस तरह की रीडिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट थी रजौरी और पुंछ में, मिलिटेंट आ नहीं सकता था बीच में, और अगर आ जाए तो वो कोई कार्रवाई करके कहीं से निकल नहीं सकता. सच डिप्लॉयमेंट वाज देयर. लेकिन 2010 से लेके 20 तक ये रहा भी कि कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ पूरे पुंछ रजौरी माहौर और इस एरिया में. लेकिन उसके बाद जैसे ही वी शिफ्टेड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स एंड सेक्टर हेडक्वार्टर्स, उसके बाद ये कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई. Colonel Rajiv, building on to that, do you think ये जो कल के इंसिडेंट के बाद what do you think कि एक जो लोगों में जो एक कंफर्ट डेवलप हुआ था, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ था, आराम से वो ट्रैवल करते थे, टूरिस्ट कम्युनिटी आई एम टॉकिंग, द टूरिस्ट पर्टिकुलरली, वो ट्रस्ट वापस में उनके अंदर रिपोज करने में हमें कितना वक्त लगेगा? Yes, देखो, let's be very to be honest, some amount of a vacuum has already, काफी बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया अभी. That trust has to be brought back. And that, like, I mean, it's whatever the discussion we carry out, कुछ भी military action हो जाए, 25 families gone. अब उसको देखते हुए जो वापस जो वो वाला फेथ लाना है, उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली इन द लाइन ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टू रियली कैरी आउट द सीरीज ऑफ debates, discussions, and really not only debate, they have to ensure the balance, not the awam of Kashmir I'm talking about, other part of our country, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, we will be there, before you come we will be there, and we ensure that every inch of Kashmir valley is well secured and well dominated by our forces, and that is what exactly. उसके साथ साथ we need to integrate our intelligence sources also with a very much realistic. We need to give a free hand to our army also. It is a high time. I was born in army when this militancy was coming up. We saw the dirtiest part of that. बहुत आगे प्रोग्रेस हुई है, लेकिन बीच में ये बड़े बड़े ऐसे हादसे जो हो जाते हैं, उसमें जो आम इंसान है उसका भरोसा थोड़ा सा टूटना शुरू हो जाता है. मुझे लगता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू रियली फॉर इंस्टेड ऑफ creating some type of just paper. No. Implementation. I'll take one concluding comments from both of you. First, Colonel Sharma, I'd like to ask you particularly, ये जो communal एक tension create हुई है because एक particular community को देख के target करना और उनको eliminate करना, उससे एक पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि एक communal tension इंडिया में create की जा सके, क्योंकि हम टेररिस्ट देखते हैं कि जनरली पाकिस्तान ग्रोन टेररिस्ट इंडिया में आके दे एग्जीक्यूट दिस किलिंग्स. तो जो लोगों के अंदर ये जो आपसी भाईचारे को मेंटेन करने के लिए व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन बी डन? नहीं, मैं कल से जो कमेंट देख रहा हूँ या जिस तरह की हाइप हुई है, ये एक कम्युनिटी को इतना दूर तक जाके मतलब है कि टारगेट कर देना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. अगर जहां पर अटैक हुआ, ऑफ कोर्स वो मिलिटेंट ने किया, और इसको हम इस तरह से ज्यादा लें कि पाकिस्तानियों ने किसी एक मतलब के कम्युनिटी को टारगेट करना, ये बहुत ज्यादा हद तक मैं सही नहीं समझता. और कल से जितने भी कमेंट आ रहे हैं वो सारे अगेंस्ट आ रहे हैं, और जितने भी ये मतलब है कि कल की जो बर्बरता हुई है, इसमें अगर हम ठीक है किसी कम्युनिटी ने की है, लेकिन इसको हम पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने किया है उस तरह से लेके चलें तो वो ज्यादा अच्छा है. मतलब है कि हाँ, नहीं तो आपसी भाईचारा खत्म करके किसी का भला नहीं होने वाला.
और जो लोग जख्मी थे वहां पर या जो लोग डेड हो गए उनको वहां से उठा के लाने वाले, और कल के मैंने जो कुछ क्लिप्स वीडियोस देखे हैं उनमें कश्मीरियों को भी मैंने रोते हुए देखा है, हेल्प करते हुए देखा है। तो प्योरली टारगेट करना इज नॉट ए गुड आइडिया, आई गेस। Right. Karna ji, Yes. Yeah, I'm fully in agreement with Colonel Sharma on this. देखो, हम लोग फौजी, the people who are from फौजी background or the man in uniform, हम Yes, लोग कभी किसी को कम्युनल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हर बैकग्राउंड के, हर कम्युनिटी के इंसान के साथ फौज के अंदर नौकरी कर चुका हूं, और हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है दैट अ ब्रदर, रियल ब्रदर कैन नॉट हैव। तो उसमें हर रिलीजन के आते हैं। एंड like if I am posted somewhere where Muslim community people are soldiers, I definitely love to go and मैं उनके पास जाके बैठता था, सब कुछ होता था। They used to respect our religion. तो फौज का जो खाका है, that is very purest form. Our religion is totally Indian Army. दूसरा अब आते हैं एक आम इंसान के तरह से। जैसे कर्नल शर्मा ने बताया, हमें we should not really, we should just, terrorist is a terrorist, he has got no religion and he should be brought to Mother Earth. And जो भाषा वो समझता है, उससे बदतर भाषा में उससे बात करना चाहिए। That is what is my position. Communal, nothing. It is definitely should not hamper, should not affect, and it will not. We are a great country and we are unshakable. Right. So thank you so much, Colonel Sharma and Colonel Rajiv, for joining in this discussion. And I'm sure with your insightful and wise ideas, the audiences who are listening to us would have gotten a bit of understanding of the current situation. और हमारा response क्या होना चाहिए situation में, both the security establishment as well as the common people also. How they also need to respond, because these are emotionally charged times. We are all hurt, we are wounded, we are traumatized, but iske beech mein we need to maintain a little bit of sanity also, that we don't go too overboard and we harm ourselves. So I hope the perpetrators are brought to justice as soon as possible, and the enemy on the other side of the border is taught in the staunchest lesson that it deserves and in the language that it understands. And I'm sure that's going to happen really soon, and peace and normalcy shall return to the valley, and we all find better sense. So thank you so much to both the officers, both the senior gentlemen. It's been a pleasure. Thank you. Thank you so very much, Rajiv. Thank you, sir. Thank you, Navjot. Thank you. Sir. Jai sir. Fine, sir. Okay. Thank you, sir. It's a privilege meeting you all. Thank you very much. Thank you, sir. Jai sir.